So today, as I've told you before, in the last weekend, that we will be starting our pronunciation, accents, and all the spoken related material in our session. Session this weekend. Sorry. तो इस weekend में this document that is being shared to us right now. This is my own document, and so am I audible to you now? Yes, Yes. ma'am. So I was Yes, talking ma'am. about that this document is not from any Google site or website or anywhere else, any Wikipedia, but this is my own personal document. I have made it in my thesis when I did recently, a month ago, when I was doing my thesis, a research work on a topic that is why can't we speak like a native speaker of English. So this was my BS honors document, जिसमें से मैंने एक जो आपके काम का कुछ पेजेस थे वो मैंने निकाले हैं. It was a huge document, but इसके अंदर से जो मैंने मतलब जो मुझे लगा that will help you guys और जो आपके लेक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा रही हूँ right now. और ये सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी, I will be requesting you guys that इसको मेरी इन राइटिंग्स को इस पैसेज को इस इंफॉर्मेशन को कहीं और यूज मत कीजिएगा, अपना खुद का लिखिएगा प्लीज, कहीं कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा. जहाँ भी अगर आपने कहीं रिसर्च करनी हो या इस टॉपिक पे कहीं भी कोई आर्टिकल लिखना हो, आई विल रिक्वेस्ट, वरना मेरे नेक्स्ट वर्क में प्लेजरिज्म आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपना एमफिल में भी यही कंटिन्यू करना है. तो ये मेरी एक बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट होगी कि इस डॉक्यूमेंट को, इन सारी रीजंस को जो मेरी अपनी बनाई हुई हैं, इनको कहीं भी कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, कहीं भी मतलब यूज ना कीजिएगा, वरना मेरे लिए ट्रबल हो सकती है. बट आई एम गिविंग यू बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल अप्रूव कर सकता था आपके pronunciation and spoken weekend में. So in this weekend we will learn that what are the reasons, main factors that why can't we speak like a native speaker of English. So यहाँ तो मसला पहली बात यही है कि we cannot speak, और अगर हम स्पीक कर भी सकते हैं तो we cannot speak like a native speaker. हमारा अपना ही accent pronunciation, sometimes we have a false or incorrect, or some vague pronunciations of words and some distorted accents. मेरा भी शायद accent distorted थोड़ा बहुत है because I am not a native speaker of English, but I have extracted some reasons that why cannot we speak like a native speaker of English. So आज के weekend में जो मैंने आपको पढ़ाना था सारा कुछ pronunciation और accent कि क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हम वो सही करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट्स एंड स्पीकिंग स्किल्स हैं एक्वायर नहीं कर पाते और कर पा रहे. अगर इन सब रीजंस को कोप अप कर लिया जाए, then we will be able to speak perfectly like a native speaker of English, maybe like Britons or Americans. So the question that why, अच्छा सबसे पहले मेक श्योर कीजिए कि आप सबको मेरी जो मैंने जो कॉपी पेस्ट करने वाली बात बताई वो समझ आ गई है कि कहीं भी इसको अपनी राइटिंग्स में यूज ना कीजिएगा, कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा. इससे आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं लेकिन ये एज इट इज ना लीजिएगा. Got it? Yes, ma'am. बिल्कुल भी नहीं. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. Okay, so आपको पीछे से कोई शोर तो नहीं आ रहा बैकग्राउंड में? No, मैम ma'am. आ रहा है थोड़ा बहुत. चलें बर्दाश्त करें थोड़ा बहुत क्योंकि No, मैं ma'am, अब it's okay. चलें. The question that why we can't speak like a native English speaker is a thought-provoking debate because it is unlimited revealed and unrevealed reasons. कुछ हमें पता है, कुछ revealed हैं reasons, कुछ हम जानते हैं, कुछ हमें नहीं पता, जिसके ऊपर हम कम गौर करते हैं.
as we penetrate in the depth of the question, that then we know the following undeniable facts which cannot be overlooked at any juncture. So the reasons are starting here. First is lack of exposure of phonetics and phonology. Phonetics and phonology is the subject of linguistics, and linguistics is the scientific study of English. English एक जुबान है और उसकी further subdisciplines major हैं, एक literature और एक linguistics. लिंग्विस्टिक्स उसकी साइंटिफिक स्टडी है कि हम किस तरह जुबान को एक्वायर करते हैं, बोलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लिसन करते हैं वगैरह वगैरह, जस्ट जुबान के बारे में है लिंग्विस्टिक्स. लेकिन लिटरेचर एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर नॉवल, प्रोज, एक राइटर की थॉट्स और राइटर के बारे में लाइक एक पूरी हिस्ट्री कह सकते हैं हम, लिटरेचर होती है. बट लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंग्लिश. तो लिंग्विस्टिक्स का फर्दर सब डिसिप्लिन एक सब्जेक्ट है जिसको फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी कहते हैं. ये फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी क्या है, इसका हम लोगों को इल्म होना चाहिए एट द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ आवर स्कूलिंग. हमें स्कूलिंग्स में पढ़ाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जस्ट अगर हम BS लिंग्विस्टिक्स कर रहे हैं तब जाकर हमें पता चलता है कि ओह दिस इज द रीज़न कि हम इंटायर लाइफ सही से बोल ही नहीं पाए सही से इंग्लिश. तो इसका जो है एक्सपोजर होना बचपन में ही हमें आना चाहिए, हमें पढ़ाया जाना चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता. अभी होता क्या है, phonetics and phonology is a subject of sounds. Okay, तो साउंड्स को किस तरह प्रोनाउंस करना है, बोलना है, मुंह में आर्टिकुलेट करना है, मतलब एक बहुत ही डीप डाउन स्टडी ऑफ साउंड्स होती है फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी. उसका अगर हमें एक्सपोजर दिया जाए, उसको हमें सही से पढ़ाया जाए, तो वी विल बी एबल टू स्पीक. और इसकी मेजर मैंने जो मतलब पहला लेसन तो मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि लाइक PTKQJ, ये जो है ना PT नहीं है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं अपनी इंटायर लाइफ में, बट दिस इज P फॉर पेन, T फॉर 10, लाइक और क्या होता है PTKQ, क्वीन, किंग. तो ये पहला सब्जेक्ट था जो होता है कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स का ही कुछ तरीके हैं, अगर इनको हम सीख लें और उसके बाद वाउल्स के कुछ साउंड्स के डिफरेंट स्टाइल्स हैं उनको हम सीख लें, तो बेसिक 2 मेजर लेसन्स हम फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के पढ़ लेंगे और हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा. बाकी डीप डाउन तो आप नहीं पढ़ सकते, यू हैव डिफरेंट स्टडीज, बैकग्राउंड्स, एजुकेशन एंड यू नो आपका डिफरेंट लेवल्स हैं. लेकिन ये जो बेसिक फर्स्ट 2 चैप्टर्स या फर्स्ट 2 लेसन्स हैं फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के, मैम वो की वॉइस बिल्कुल क्लियर है? किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैम क्लियर वॉइस आ रही है. ठीक है. तो ये बेसिक जो चैप्टर्स हैं पहले, दूसरे, तीसरे तक हमें फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के पढ़ने चाहिए बचपन में ही. अगर बचपन में ही एटलीस्ट हमें कॉलेज लाइफ में या मैट्रिक में लाजमी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ानी चाहिए. दिस इज द स्टडी ऑफ साउंड, और साउंड को डिफरेंट तरीके से लिखना भी एक मतलब है कि इसके अंदर एक साउंड की ही एक लैंग्वेज है. आप में से किसी को पता है व्हाट इज शॉर्ट हैंड? Stenowriting. Yeah, ma'am, it's a handwriting that used mostly in courts. हाँ जी, ये started I was stenowriting. देखो इसलिए 2 लड़के ही बोले हैं, 2 अदद. हाँ जी, ऐसा है कि ये एक राइटिंग स्टाइल है, राइटिंग साइंस होते हैं जो कि साउंड्स पर ही बेस होते हैं, और ये एक अलग ही जुबान है जो कि साउंड्स पर ही बेस है. और साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट किस्म के साइंस यूज करते हैं. कोई अल्फाबेट नहीं, कोई डिक्शनरी नहीं, कोई किसी चीज का यूज नहीं, यहाँ पे जस्ट साउंड्स. इसी से मिलता जुलता हमारा फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी भी तकरीबन है. अगर आप में से जो 2 ने बोला है शॉर्ट हैंड का पता है, उसका फर्स्ट लेसन भी इसी तरह से है, PTKK 6J है ना. तो यही सेम चीज साउंड्स की स्टडी सही से करना, lack of exposure to the phonetics and phonology is the very basic and you know major reason that why cannot we speak like a native speaker of English. और दूसरी मेजर रीजन है
लैक ऑफ लैब्स इन यूनिवर्सिटी लेवल। देखिए जी, मैं एक लिंग्विस्टिक्स की स्टूडेंट हूँ, लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में मैंने पढ़ा है। ये एक साइंटिफिक स्टडी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सदर्न पंजाब की यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है, ठीक है। सदर्न पंजाब की यूनिवर्सिटी एक मतलब है कि बहुत से साउदर्न पंजाब के लोग बहुत सी सिटीज से उस यूनिवर्सिटी में आते हैं। यानी कि मैं कहने का मकसद है कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी और बहुत कैपेबल यूनिवर्सिटी, लेकिन स्टिल वहाँ साइंटिफिक लैब नहीं है जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, जुबान को किस तरह से बोलना है। कुछ मशीनरीज वहाँ नहीं पड़ी, लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में हमारे कोई लैब नहीं है। हम सही से बोलना जानेंगे तभी हम लोगों को बताएंगे ना किस तरह से बोलना है। हमारे पास ही वही बात हो गई कि साइंटिस्ट्स हैं, उनके पास चीजें यानी कि इक्विपमेंट्स और मेजरमेंट्स सारे कुछ नहीं है, और तो फिर वो दुनिया को क्या वैक्सीन बना के देंगे या क्या मतलब पाकिस्तानी करेंगे आगे आगे जाके। तो दिस इज ऑल्सो अ मेजर रीजन। सो रोल ऑफ स्कूलिंग इन आवर लर्निंग, डेफिनेटली हम में से जो जितने भी यहाँ पर लोग हैं, चलें लेट्स हैव अ इनफॉर्मल क्वेश्चनिंग। आप में से कौन कौन एसपीएस में पढ़ा है? एसपीएस या आपके इलाके के जो बेस्ट स्कूल है, आपको लगता है कि जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ दुनिया के मतलब दुनिया नहीं सॉरी हमारे जो सिटी था उसका बेस्ट स्कूल है? मैम हर एक को ही अपना स्कूल My बेस्ट school लगता was है। यस Misali मैम Friends था Public. बेस्ट स्कूल। That मेरा was मतलब best था कि at his time. जैसे मैं जी मैम। भावलपुर में रहती हूँ। यहाँ के बेस्ट स्कूल 3 हैं, बीकन हाउस, ब्लूमफील्ड और एसपीएस, और एपीएस भी कहा जाता है। तो मतलब है कि इन चारों स्कूल्स में से मैं तो नहीं पढ़ी यहाँ से, और मैं पूछना चाह रही हूँ अगर कोई भावलपुर में है, इन चारों स्कूल्स में से कोई पढ़ा है या अपने अपने इलाकों के बेस्ट स्कूल से पढ़ा है कोई? Yeah, ma'am. At my time, when I did my matric, that was Misali was the best school in my city. Misali Friends Public. So that was that time. Now Okay, just the Punjab College and other schools. I can't hear you, ma'am. हाँ जी, सॉरी फॉर द वेट। मैं बच्चों को चुप कराने गई थी। यू नो सैटरडे संडे को फुटबॉल खेल रहे होते हैं बाहर। तो हाँ जी, तो मेरे पूछने का मकसद ये था कि अगर आप लोग अपने इलाके के बेस्ट स्कूल से पढ़े हैं और अगर आप को पता है कि वहाँ का, पढ़े भी नहीं है बेशक, लेकिन आपको पता है कि वहाँ का सिलेबस क्या है, वहाँ के मतलब किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो यू कैन नो द डिफरेंस ऑफ एक छोटे स्कूल का सिलेबस एंड यू नो yeah.
So I'm back now. हाँ जी. So the role of schooling in our learning. So जब हम learn कर रहे होते हैं अपने schools में या colleges में, तो here the hell difference के different school के systems में, different syllabus के systems में, different teaching styles में, मतलब है कि एक अच्छे स्कूल में APS स्कूल का सिलेबस डेफिनेटली डिफरेंट होगा और एक छोटे स्कूल का डिफरेंट होगा. तो हाउ कैन वी कम्पीट एक एज अ नेशन? अब एज अ नेशन ही हम इतना डिफरेंटली ग्रो अप कर रहे हैं, ब्रॉट अप कर रहे हैं, और हमारी स्कूलिंग डिफरेंट है, हमारी लर्निंग डिफरेंट है. हम डिफरेंट अच्छे टीचर से अगर पढ़े हैं तब भी बहुत डिफरेंट बात है. अगर हम सरकारी स्कूल्स में पढ़े हैं और जो जिनके ऑर्थोडॉक्स मेथड्स होते हैं, जिनको सही से पढ़ाना नहीं आ रहा होता, या जो उस्तानियाँ जो होती हैं वो कुरान पाक पढ़ रही होती हैं या वजू करके क्या कहते हैं तस्बीहां पढ़ रही होती क्लास में, लेकिन पढ़ा नहीं रही होती. मतलब है कि उनको लग रहा होता है कि हम हकूकुल्लाह अदा कर रहे हैं तो इट्स ओके, अगर हम हकूकुल इबाद अदा नहीं कर रहे तो इट्स फाइन. तो मतलब मेरा समझाने का मकसद, मैं इस टाइम बता नहीं पा रही आपको कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को. कोई एक्सप्लेन कर सके इस चीज को? I understand, ma'am. हाँ, मैम आप Discrimination of syllabus in a society. मैम उनकी एज भी काफी हो चुकी होती है और उनसे इतना पढ़ाया भी नहीं जा रहा होता, जितना कि फॉर एग्जांपल जो हमारे फ्रेश टीचर्स होते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में ही होते हैं, और जो भी अभी अभी जैसे पढ़ के मैम आए होते हैं. अभी ये स्कूल मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे हाजिरी वगैरह लगाने वाला सीन आ गया है, और सिलेबस भी आपको शायद आइडिया हो चेंज हो गया ओवरऑल पंजाब. तो अब उन टीचर्स को मेरे ख्याल में वाकई नहीं पता, मतलब ये उनका कसूर नहीं है, वो पीछे रह गए हैं, अब नई चीजें आ गई हैं, वो चले नहीं साथ साथ. यही कह रही थी ना, मतलब मेरा यही मकसद है बताने का कि एक तो हमारा स्कूलिंग इतना मैटर करता है कि अगर हम अच्छे स्कूल से पढ़े हैं तो हम डिफरेंट पर्सनालिटी रखते होंगे, और अगर हम एक बहुत छोटे और ऐसे स्कूल से पढ़े हैं जहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम ही बहुत ख़राब है, तो हमारी डेफिनेटली पर्सनालिटी वैसे बेस्ड कर जाएगी. ये वैसे हमारे ऊपर भी है कि हम कितना ग्रूम होना चाहते हैं या नहीं, लेकिन डेफिनेटली मैं कहती हूँ कि 50% तो हमारी स्कूलिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी, लेकिन मैं अब जो है बेहतर अपना ग्रूम कर चुकी हूँ लैंग्वेज में, हर चीज़ में, लेकिन एक जो चीज़ है कि जो अब मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसपीएस या एपीएस में जाती भी हूँ पढ़ाने, तो मुझे वो तरीके कम पता हैं कि जो उनके पढ़ाने के तरीके हैं. यानी मैं उन स्कूल से नहीं पढ़ी, मुझे नहीं वास्ता कि उनके क्या मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस और डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं. मैं उसी गवर्नमेंट स्कूल के स्टाइल से पढ़ाऊंगी, लेकिन ये एक गलत चीज है. अब यहाँ पर मैंने वैसी एक एग्जांपल दी है, यहाँ पर मैं मेरी ये चीज स्कूलिंग की वजह से लैग कर गई. तो दैट्स व्हाई रोल ऑफ स्कूलिंग इन आवर लर्निंग इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट. अगर ये इसका सोल्यूशन हो सकता है कि स्कूल्स हर तरह के स्कूल्स में सेम सिलेबस कर दिया जाए, सेम टीचर्स कर दिए जाएं, हर जो टीचर है सब्जेक्ट का वो उसका सेम मेंटल लेवल हो, मतलब कोई एक्स्ट्रा मतलब है कि देहाती तबके से ना हो जिसको बिल्कुल ना पता हो कि व्हाट्सएप या ऑनलाइन लर्निंग किस तरह से यूज करनी है. तो सबको एक सेम पेज एट द सेम बोर्ड रख कर चलाया जाए तो एज ए नेशन वी कैन वर्क. सोशल रीजंस में आ जाता है नॉर्म्स एंड नेगेटिव क्रिटिसिज्म. फॉर एग्जांपल अगर आप चले जाते हैं अपने देहात में और अगर आप अंग्रेजी में बात करते हैं, चलो मैं देहात में क्यों गई हूँ, मैं तो अपने शहर की बात कर लेती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मैरिज या वेडिंग सेरेमनी में हैं एंड देन यू आर ट्राइंग टू बी मैनरफुल एंड मैनर्ड इंसान कि चलें हम थोड़ा फॉर्मल हो जाते हैं. अगर कोई सामने वाला पढ़ा लिखा आपको मिल गया, आप उसके साथ अंग्रेजी में बात करें, आप दोनों बड़े अच्छे से खुश मिजाजी से अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाली आंटी हैं वो कह रही हैं कि इनको देख लो अंग्रेज बन रहे हैं ज्यादा, ये वो, मतलब एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म. वही एक जज करना, वही सोसाइटल नॉर्म्स, यही सोसाइटल रीजंस, ये है सोशल रीजंस जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती समटाइम्स. फॉर एग्जांपल अगर हम अच्छे जो है एक बड़े उस्ताद, एक्सपीरियंस्ड उस्ताद जो कि अंग्रेजी का है, उसके बाद भी चले जाते हैं और लेकिन वो एक गवर्नमेंट स्कूल का है, गवर्नमेंट टीचर है, ठीक है, उसको नहीं पता P for पेन है, T for 10 है, वो उसने वही पढ़ाना है P for पेन, T for 10, ठीक है. और अगर हम उसके सामने कहते हैं कि नहीं सर जी ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है, he will be rigid, he will criticize you badly,
he will react negatively, he will create a norm, he will comment on you, he will judge. ऐसे है कि नहीं? हाँ So Yes, this is the ऐसे ही है reason मैम। से उन तो साहब को अच्छा नहीं हमें लग रहा होगा ना, आप उन्हें कुछ पढ़ाएंगे। तो कोई माइक अपना ऑफ कर ले, किसी का भी एक्स्ट्रा अगर ऑन है तो, अगर आपने जवाब देना है तो दें, उसके बाद ऑफ कर दें। I was a student of government school, but I want to grow more, so that's why before preparing my CSS, I joined this language session. तो उस्मा, मिस उस्मा, आपने कुछ लर्न किया थोड़ा बहुत इस सेशन से? क्या आपको लगता है कि आपके CSS जी मैम, स्पीकिंग स्किल के लिए मैं अभी कोशिश कर रही हूँ और लर्निंग में काफ़ी अच्छा हो गया है, जितने भी सेशंस अभी अटेंड किए हैं। ठीक है, थैंक यू। So I was talking about the societal reason कि हमें सबसे ज़्यादा इस चीज़ से बचना चाहिए। पहली बात तो हम अपने आप को प्रूव करें। अब मैं इस तरह से बात तो कर रही हूँ कि फलानी आंटी ऐसे कह देंगी अगर मैं अंग्रेजी में बात करूँगी, लेकिन समटाइम्स अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कर रहे हैं, मैं P4 10 T4 P4 पेन T4 10 कह रही हूँ और अगला बंदा कह रहा है कि नहीं महानूर ऐसे नहीं है, थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करें, और मैं कहूँ ले तुझे ज्यादा मतलब वो अंग्रेज बनने की पड़ी है, तो ये चीज मुझ में भी होगी। मतलब है कि इंसान अपने आप से शुरू करे अगर सोसाइटी से नेगेटिव चीजें खत्म करनी है तो। कहने का मकसद ये सोशल रीजंस यही हैं, नॉर्म्स वैल्यूज बना देना, नेगेटिव क्रिटिसिज्म करना और लोगों को जज करना। सबसे पहले हम अपने आप में खत्म करें, लोगों की सुने बोलने से पहले। So our prevailing atmosphere regarding our English spoken, इसमें यही चीज है कि the atmosphere in our English class, the atmosphere in our school and colleges, वो environment नहीं होता। कहने को तो वो अंग्रेजी स्कूल्स होते हैं, कहने को तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, चाहे पब्लिक हो या चाहे प्राइवेट हो या चाहे गवर्नमेंट के हों। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बावजूद भी दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम कि आप सराइकी पंजाबी पश्तो या हर जुबान में क्यों बोल रहे हैं या उर्दू में ही क्यों बोल रहे हैं। अगर आपने अंग्रेज़ों के साथ कम्पीट करना है तो उनकी ज़ुबान सीखनी पड़ेगी, एंड यू हैव टू बी विजिलेंट एंड यू हैव टू लर्न समथिंग। और इंग्लिश मतलब है कि चलें स्कूल्स कॉलेजेस तो दूर की बात, हमारा जो इंग्लिश डिपार्टमेंट भी है, अगर वहाँ भी फाइन नहीं किया जाता, वहाँ भी लोग इंग्लिश की बजाय चलें उर्दू बोलने हैं, एटलीस्ट थोड़ा सा तो मैनरफुल लगता है, लेकिन नहीं, पंजाबी सराइकी पश्तो और एवरीथिंग। मतलब है कि अगर आपने ये करना था तो मेरे ख्याल से आपको उस अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज में BS या डिग्री लेनी चाहिए थी। मेरे कहने का मतलब ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर वाकई आपने इंग्लिश डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया तो ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू बी गुड एट इंग्लिश। बेशक रिटन है, स्पोकन है, राइटिंग है, आपकी लिसनिंग है या एनीथिंग, ठीक है। आपका डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें पार्टिसिपेट करें, मतलब खुद के साथ सिंसियर होके चलें। सो दिस इज अ प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर ही हमारा, अगर फ्रेंड्स में हम बात करें कि मतलब नेगेटिव बात कर रहे हैं, लोगों को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, तो वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश या वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग गुड। ओके, untrained teachers and unprofessional way of teaching, again इसको हम हाईलाइट करेंगे कि टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं की जा रही। और मैं कहूँगी कि टीचर से पहले एक पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स की। हमारी पेरेंट्स जो हैं, पेरेंटिंग जो है हमारी मतलब एक पेरेंटिंग पर भी कोर्सेज होते हैं, लेकिन हमें कराए नहीं जाते। हमारे पेरेंट्स को ना, आजकल के यंग पेरेंट्स को ना ही कभी इस बारे में सोचा गया। तो पेरेंटिंग इज अ सब्जेक्ट जो कि वेस्ट में ज़्यादातर होता है, हमें भी करना चाहिए उसको अडॉप्ट। और first learn how to be a parent, how to be a good parent, how to treat our children good, और उसके बाद how to be a good teacher। अगर आप टीचर ऑलरेडी बन चुके हैं तो how to enroll in the courses जो कि आपको ट्रेनिंग में हेल्प करें, आपकी डिफरेंट अच्छी लर्निंग में हेल्प करें। ऐसा नहीं है कि आप उस्ताद बन गए हैं तो बस you know everything।
अगर मैं भी उस्ताद बन चुकी हूँ तो मुझे भी डेफिनेटली ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग सेशंस एक गवर्नमेंट टीचर बनने से पहले होने चाहिए, जो कि कम होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते। और अगर मैं फॉर एग्जांपल, चलो मैं अपनी एग्जांपल ना लूँ, अभी यहाँ पर उज़्मा थी, उन्होंने सीएसएस की बात की। फॉर एग्जांपल अगर उनका सीएसएस क्लियर हो जाता है तो उनकी प्रॉपर अगर ट्रेनिंग नहीं की जा रही, तब वो उस जिस भी प्रोफेशन या डिपार्टमेंट में जाएंगी तो शी कैन नॉट वर्क गुड बिकॉज उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीएसएस कर लिया तो आपकी ट्रेनिंग भी हो गई है। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर इंग्लिश कोर्स में पढ़ा रही हूँ तो मेरी ट्रेनिंग भी हो गई है। मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर, एक्स्ट्रा एज अ टीचर चीज़ों की, एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है सो दैट आई कैन टीच वेल। सो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनट्रेन्ड टीचर्स होते हैं, अनप्रोफेशनल वे ऑफ टीचिंग होता है, जिसकी वजह से वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हमारी इंग्लिश में है, सोशल स्टडीज समटाइम्स हमारी इंग्लिश में होती है, लेकिन हमें ना पढ़ाया ना समझाया इंग्लिश में जाता है। हमें उसी तरह एक्सप्लेनेशन भी उर्दू में दी जाती है। अगर आई नो कि इट इज़ डिफ़िकल्ट कि अगर हम इंग्लिश में ही एक्सप्लेन कर दें तो हम क्या सीखेंगे। मैंने अक्सर ये भी सुना है। मैं कहती हूँ कि फर्स्ट लेसन में ऐसे होगा कि मुश्किल होगी, सेकंड में ऐसा होगा कि मुश्किल होगी समझने में, लेकिन थर्ड फोर्थ टाइम ऐसा नहीं होगा। सो ट्राई टू बी सिंसियर विद योरसेल्फ कि डट जाएं कि लर्न करना है हमने, कुछ भी हो बेशक वो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मेरी सिस्टर हैं, वो बीएस इंग्लिश कर रही हैं, तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। तो जैसे आप अभी कह रही है ना कि जैसे आप कंटिन्यूसली अगर क्लास लेंगे इंग्लिश में तो आपको समझ आ जाएंगी। तो मैं अक्सर जब उनके साथ बैठी होती हूँ तो उनकी टीचर कंटिन्यूसली जो है वो इंग्लिश बोल रही होती है, लेकिन वो ऑनेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा तो क्या पढ़ा रही हैं। बिल्कुल ही अगर आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे वो भी चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि फॉर एग्जांपल उनको कितना टाइम हो गया ये क्लासेस देते हुए? लाइक अब उनका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है। ओके, अब मेरा ख्याल है कि जब हम एक बेबी होता है उसको फर्स्ट क्लास में, वन क्लास में एडमिशन करवाते हैं। जस्ट वेट अ सेकंड। हाँ जी, तो क्या बात चल रही थी? सॉरी। हाँ, तो आपने बताया, यस आई वाज गिविंग एन एग्जांपल कि मैंने अपनी फर्स्ट जो मेरा सेशन था वो टोटली इंग्लिश में था। वो मैंने 1 मंथ करवाया, टोटल इंग्लिश में था। स्टार्ट में लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता था, लेकिन मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करती गई इंग्लिश में। ये वाला सेशन मैंने इंग्लिश में इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे लगा कि लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, ऐसे पढ़ा के देखते हैं क्या होता है, कैसा रिजल्ट आता है। और मैंने वाकई ऐसे पढ़ा के देखा तो अच्छा रिजल्ट आया। आप लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, और लेकिन वो लोग भी अच्छा पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन बोल कर, सुन कर वो ऐसे पक गए थे। मतलब उनकी जो है इतनी आदत हो गई थी उनको कि वो एक वर्ड भी ना उर्दू में सुनते थे ना बोलते थे। और अगर उनको नहीं भी आ रहा होता था, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक चीज़ कहना सही होगी। एट यू नो एट द फाइनल स्टेज हमें आ ही जाता है। हम एक छोटा बच्चा स्कूल में दाखिल करते हैं, हम एडमिशन दिलवाते हैं उनको, और टोटली वहाँ पर इंग्लिश एनवायरनमेंट है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको बड़ा मुश्किल होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ही लर्न्स। मैम जो आप इंग्लिश बोल रही हैं वो तो इजी है कि जो हमें समझ में आ रही है, लेकिन उनका जो वो लेवल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो एक बोरिंग सी क्लास, पता नहीं वो कैसे सुनती है। मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था वो क्लास सुनते हुए। कंटिन्यूसली अगर आप बस इंग्लिश ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज दूसरी है तो हमें वो बेहतर लग रहा होता है कि अपनी ज़ुबान में बात समझाई जाए, वो इतनी बेहतर लग नहीं रही होती वैसे। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर वही ऑर्थोडॉक्स मेथड जो टीचिंग का है वो यूज़ किया जा रहा है। मेरा ख्याल से कि वो जो टीचर हैं उनको आइडिया नहीं है। वो मतलब एक वर्बल ही कम्युनिकेशन से ही चल रही है, नॉन वर्बल नहीं यूज़ करी। ना वो टून्स को डिफरेंट करती हैं, ना वो उसका अपना बात बताने का स्टाइल डिफरेंट करती हैं, ना वो मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ या अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा टोन डिफरेंट है। अगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ग्रुप में तो मेरा टोन डिफरेंट होगा। मतलब है कि शायद वो एक ही टून से चल रही हैं, या शायद वो एक ही मेथड, बोलने का स्टाइल चूज किया हुआ उन्होंने, और वो फ्लेक्स नहीं कर पा रही। मतलब है कि फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रही, शायद इस वजह से वो बोरिंग उनको लगता हो।
और आपको भी टाइम्स ऐसा भी होता है कि यार देखो मेरा आज अगर मूड नहीं है बताने का, या मेरा आज मूड नहीं है पढ़ाने का, मेरा मूड नहीं है आप लोगों को कुछ भी पढ़ाने का, तो वो विजिबल होगा। समटाइम्स टीचर खुद भी इंजॉय नहीं करता अपने प्रोफेशन को, अपनी टीचिंग्स को। मैं तो इंजॉय करके पढ़ाती हूँ और मुझे तो खुद मज़ा आता है कि मैं पढ़ाऊँ। और समटाइम्स टीचर इस चीज़ को खुद बोर फील करके पढ़ा रहे होते हैं, सर से उतार रहे होते हैं, तो वो जाहिर है फिर स्टूडेंट्स भी इंजॉय नहीं करते। तो मेरा ख्याल से यही केस था उनका भी। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बट मैम मे भी ऐसा हो ना कि इन्हें समझ ना आ रही हो, जिनकी क्लास है उन्हें कुछ पता हो बेसिक का, तो वो मे भी उन्हें समझ आ रही हो। मतलब ऐसे है ना कि अगर मैं इंग्लिश की क्लास में लग जाऊं तो मेरा तो सारा ऊपर से गुजर जाएगा। क्यों, मुझे पता ही नहीं इंग्लिश है क्या, क्यों है, कैसे है। ये भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि टोटली इंग्लिश में है और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। ऐसा नहीं कहा है आपने? आपकी बहन को भी समझ नहीं आ रही होती? मैं सिर्फ अपनी ओपिनियंस नहीं दे रही, मैं उसकी भी बात कर रही हूँ। लाइक दोस्त में, लाइक फॉर एग्जांपल उसकी सबसे फर्स्ट क्लास थी और क्लास में टीचर आए और साथ ही आपको इंग्लिश में सब कुछ समझाना शुरू कर दे, तो किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा। क्योंकि जो हमारा FSC तक लेवल होता है वहाँ पर इस तरह की स्टडी हम करते भी नहीं है कि टोटल इंग्लिश में हम पढ़ रहे हो, और एकदम आप BS की क्लास में जा रहे हो, सब कुछ आपको इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर दिया जाए, तो वो ऑब्वियसली टफ लगता है। वो BS कहाँ से कर रही है बाय द वे? UOG से, ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ तो मेरे मैट्रिक में मेरी टीचर थे, हो सकता है। हाँ जी। तो वो इस तरह ही करते थे कि जिसने, हमारी फर्स्ट क्लास थी मैट्रिक के, बच्चे डर रहे थे यार, वो मारते भी बहुत है। तो उन्होंने हमें पहले बात क्लियर कर दी कि जिस किसी को भी कुछ भी कहना ना, मेरे साथ इंग्लिश में बात करे, और मैं जिस किसी को जो भी कहूँगा इंग्लिश में कहूँगा। जिसने बैठना है बैठे, जिसने जाना है जाए। तो वो आप वाली बात, पहला हफ्ते हमें मुश्किल हुई यार, ये सर तो ऐसे हैं। शिकायत लेके गए प्रिंसिपल के पास, उसने कहा उनका टीचिंग वे यही है। तो ठीक 10 दिन बाद हम सब ट्रेन हो गए। अब हमें उर्दू में बात करें तो हमने नोटिस ही नहीं लिया कि भाई आप आपस में लगे बैठे हैं। सही। चलें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। मैंने आपकी आधी बात सुनी है और मेरी ये म्यूट हो गया था, मतलब कॉल आने लगी थी। चलें, व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? ऑर्थोडॉक्स मेथोडोलॉजी रिगार्डिंग आवर लर्निंग। ऑर्थोडॉक्स उसी को कहते हैं जो कि एक पुराना तरीका हो चुका है। फॉर एग्जांपल ऐसा मेथड टीचिंग का जो कि 10 साल 20 साल 30 साल पहले यूज किया जा रहा था, वही अभी यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे कुछ एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं इंग्लिश के, वो जो पिछले 30 40 50 साल से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई जा रहे हैं वही सेम मिस्टर चिप्स मिस्टर चिप्स मिस्टर चिप्स। उन्होंने उसके अंदर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज नहीं ढूंढी। मतलब उन्होंने स्टोरी बता दी ये थी, कोई इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दूं, एक उर्दू की टीचर थी हमारी मैट्रिक की। आज मैं अगर वही उर्दू का सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई को पढ़ा रही होती हूँ, वो मैट्रिक में है, और मैं उसको इतना खुद इंटरेस्ट लेके पढ़ा रही होती हूँ, उसको समझाने के लिए डिफरेंट ओपिनियंस खुद से दे रही होती हूँ, और उसका मतलब समझा रही होती हूँ कि यहाँ पर जो पैसेज लिखा हुआ है, यहाँ पर जो स्टैंजा लिखा हुआ है, ये शायरी का, गजल का, या किसी भी चैप्टर का, या किसी भी स्टोरी का, इसका ये मतलब है। और उसका मतलब राइटर ये कहना चाह रहा है। राइटर के दिमाग में ये भी हो सकता है कहते हुए, यार ऐसे भी तो हो सकता है, यार वैसे भी तो हो सकता है। मतलब है कि एक इंटरेस्ट लेके पढ़ाना, और मुझे वो खुद बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि मैं उसको जब उर्दू पढ़ा रही होती हूँ तो। और जब मैं सोचती हूँ कि मुझे किस तरह से उर्दू पढ़ाई गई, कितना बुरा तरीका था, कितना बस वो रीडिंग करवाती थी और दैट्स ऑल। और आज भी कुछ ऐसी टीचर्स हैं जो स्टिल दे आर हैविंग द सेम मेथड्स ऑफ टीचिंग, ऑर्थोडॉक्स एंड ऑब्सोलीट मेथड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। तो आई फील वेरी सैड कि स्टिल दे आर हैविंग, और फिर भी उनको रखा हुआ टीचर बस सिर्फ इस वजह से कि वो एक्सपीरियंस है। बहुत वैसे एक अफसोसनाक बात भी है और खतरे की भी। लिमिटेड रिसोर्सेज में आ सकता है कि में वी भी डोंट है हैव मैम। मच लेबोरेटरीज। अगर हम साइंस की बात करें, साइंटिफिक स्टडीज के लिए वी मस्ट हैव लेबोरेटरीज, साइंटिफिक या बायोकेमिस्ट्री या दीज सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जहाँ पर लेबोरेटरीज और डिफरेंट मजीद। चलें उसकी छोड़ दें, वो तो समटाइम्स होती भी हैं लेबोरेटरीज। समटाइम्स हमें वाकई में ज़रूरत होती है हम बच्चों से PPT फाइल्स में या मतलब है कि पावर पॉइंट यूज़ करवा कर उनको समझाएं, और क्लासरूम में पावर पॉइंट यूज़ करके कुछ वीडियोस दिखाएं उनकी लर्निंग के लिए। लेकिन स्टिल वी डोंट हैव इन द क्लास एनी पावर पॉइंट। ज़ाहिर है महंगे अच्छे स्कूल्स में तो होगा, लेकिन हर स्कूल में नहीं होता। तो ये एक लिमिटेड रिसोर्सेज भी हमारे पास जो है ना लर्निंग के, this is also a hurdle in our learning. Apathy of the high ups.
यही सेम टॉपिक, यही सेम पिछली बात है कि ऊपर नीचे का जो एक डिवीजन है ना, ये नहीं होनी चाहिए, ऑल शुड बी सेम। डिस्क्रिमिनेटेड सिलेबस, अब तो वही सेम बात पुरानी वाली, लैक ऑफ क्लासरूम प्रैक्टिस। यस, दिस इज द पॉइंट। फॉर एग्जांपल इस क्लास में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, आप लोग खुद से पार्टिसिपेट करते हैं इंटरेस्ट लेकर, अपना मतलब इस चीज को एंजॉय करते हुए यू पार्टिसिपेट, बट you know, in many of the classes, in many of English classes, we don't have any practice. Trend ही set नहीं करते teachers, ना ही students। तो अगर नहीं होगी, we can be able to speak native speaker के बाद हम तो speak करने के भी काबिल नहीं होंगे if we will not practice. So written is more focused than spoken. शुरू से अब तक मैट्रिक्स एफएससी लेवल में अभी तक आपको एसेज लिखना सिखाए हैं होंगे और स्टोरीज लिखना सिखाई होंगी, बट आई एम डैम श्योर कि किस तरह बोलना है, पढ़ना है, प्रोनाउंसिएट करना है, एक्सेंट करना है, नहीं बताया होगा। एम आई राइट? Yes, ma'am. यस मैम। कोई ऐसा डिसएग्री करता हो इस बात से? मैम आप तो आप ये दुआ करें कि वो पूछ लेते हैं कि लिखा है कि नहीं, मसला तो जहाँ तक पहुँच गया है। Yes, ma'am. मैम रिटर्न फॉर्म में तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कोई इसको स्पीक नहीं करवा रहा होता कि कैसे इसको स्पीक करना है या कैसे पढ़ना है, कैसे प्रोनाउंसिएशन उसकी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं करवाते। ऐसा ही है। तो दिस इज द प्रैक्टिस, दिस इज द लैक ऑफ प्रैक्टिस, और दिस इज आल्सो स्पोकन इज लेस फोकस्ड एंड रिटन इज मोर फोकस्ड। डेफिनेटली आपका रिटन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मैं इस टाइम यहाँ पर वो रीजंस डिस्कस कर रही हूँ कि why cannot we speak like a native speaker, and why we are failed to pronounce the spellings or the words well, and why we are failed to have a good accent. Influences from ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं उर्दू ज़ुबान की हूँ, मेरी मदर टंग उर्दू है या सराइकी है, तो मुझे थोड़ा मुश्किल होगी। लेकिन अगर पश्तो या पश्तो की से रिलेटेड, मतलब पश्तो के आसपास कोई और इलाके हैं उनकी तरह की है, तो बहुत अच्छी मेरी इंग्लिश हो सकती है। फॉर एग्जांपल साबिरुल्लाह है हमारे इंग्लिश में स्पोकन कोर्स के बॉयज़ वाले ग्रुप में, वो पश्तो हैं। इसी वजह से पहले मुझे स्टार्ट में पता नहीं चल गया इतना अच्छा एक्सेंट कैसे हो सकता है किसी का भी इतनी जल्दी। वो उस टाइम इंटर में था अपने, जब मैंने कोर्स करवाया। बाद में पता चला कि वो पश्तो जुबान से उसकी टंग पश्तो थी। दैट्स वाई कुछ जो हमारे मुंह को भी आदत हो चुकी होती है, वो साउंड्स, वो अल्फाबेट्स, वो वावल्स उसी तरह की, उसी स्टाइल में प्रोनाउंस करने के, जो कि अंग्रेजी से मिलते जुलते हैं। तो अगर वी आर पश्तो तो बहुत इजी रहेगा हमें, लेकिन अगर यू नो उसके अलावा कुछ है, तो बेटर हो जाएगा। सॉरी। अगर हम 6 मंथ में हम ये गर्मियों वाले वहाँ गुजार लेते हैं ना, तो मे बी एक्सेंट बेटर हो जाएगा। Maybe. Okay, awareness of connectivity. So these basic main reasons that can't we speak. और कल मैं आपको एक पैराग्राफ रिकॉर्ड करके दूंगी, बल्कि अभी शाम तक, रात में, आपने कल तक उसको वही उसी तरह से ही प्रोनाउंस करके मुझे देना है। और इसी किस्म की कुछ स्पोकन की मे भी कल क्लास जो है वो व्हाट्सएप पे हो, या तो क्या हम सब जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाते होते, और व्हाट्सएप पर ज़्यादा अच्छे से रहता है, सबको सुनना इजी रह जाता है। तो that's all from my side for today. Hope you are Excuse me, ma'am. enjoying the session. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, जी which accent is best for us to speak? I mean, should we speak a British accent or American? देखिए जी, ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों बेस्ट हैं, लेकिन जो तमीज़दार, जो एटिकेट्सफुल, जो कहना चाहिए मैनर्ड लगता है, वो ब्रिटिश है। और जो तमीज़दार लोग, अंग्रेज वर्ड में भी तमीज़दार लोग ब्रिटन्स ही समझे जाते हैं। ब्रिटन्स यानी कि जो इंग्लैंड की ज़ुबान है, यानी कि जो लंदन वालों की ज़ुबान है ना, वो। मैम वो लेकिन मैच भी 3 पीस पहन के देखते हैं। सॉरी।
मैम टेस्ट मैच होता है ना 5 दिन का, तो 5 दिन की टिकट लेके पांचों के पांचों दिन उन्होंने 3-पीस सूट में मैच देखना होता है। ब्रिटेन्स ने बिल्कुल ऐसे ही है। और जो अमेरिकन होते हैं उनको कहा जाता है कि वो जो अल्फाज खाते भी हैं और वो कुछ एक्स्ट्रा एग्जैक्टिव वर्ड्स को बोलते हैं क्योंकि वो उनकी आदत बनी हुई होती है। असल इंग्लिश देखे ना, इंग्लिश कहाँ की जुबान है? इंग्लैंड, पहले इंग्लैंड का नाम इंग्लैंड होता था। नाउ इट Yes, इज ma'am. इंग्लैंड। Yes, तो ma'am. इंग्लिश की ही बेसिकली जुबान है। तो डेफिनेटली अब किसका बेस्ट या बेहतर होगा? ब्रिटेन्स का ही Yes, माना ma'am. जाएगा, इंग्लैंड वालों का ही माना जाएगा। उनकी जुबान है मैम, उन्हीं का ही। हाँ जी बिल्कुल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड और अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम।